السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیزان ملت، میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ سبھی کو عمران کی طرف سے سلام عرض ہے، اور گھر میں بیٹھے پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو بھی عمران کی طرف سے سلام عرض ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں آج ایک خصوصاً بات بتانے جا رہا ہوں جو تریپورہ میں جو پرسوں تک 11 مسجدوں کو شہید کیا تھا، معاذ اللہ قرآن پاکوں کو جلایا گیا، اور کل تک اور 4 یعنی کہ ٹوٹل کل ملا کے 15 مسجدوں کو شہید کیا گیا ہے۔ اور شہید کرنے کے باوجود ان کی ہمت، ان کی ضرورتانہ دیکھیے، وہ ریلی نکالے ہیں، گستاخ رسول ہیں، وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں نام لے کر۔ ان کو ابھی جو میرا خون کھول رہا ہے اسے روک لینا چاہیے، کیونکہ صبر میں ہی اللہ طاقت رکھا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اسی لیے تو میں صبر کر رہا ہوں، اور میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو بھی آپ کو دبائیں ایمان اور مذہب کے بارے میں روکیں، گھر میں بیٹھو، کیا لگائے، کیا کر رہے ہیں، یہ باہر والے دیکھ لیں گے، کر لیں گے۔ اللہ اسی کے لیے ہمیں نہیں بھیجا ہے ادھر زمین میں، اپنی عبادت کے لیے، ساتھ ہی ساتھ دنیا داری بھی کرو اور عبادت بھی کرو۔ اگر وہی سوچ لو بھائیوں کہ ہم گھر بیٹھے ایمان پائے ہیں، گھر بیٹھے سب کچھ ہمیں مفت میں ملا ہے، اللہ کا سب سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نبی امت، ان کے حبیب، ان کے نور کے امتی ہیں، اور اللہ کا سب سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلم ایمان یعنی کہ ہمیشہ ایمان پر رہنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کا مطلب چند بعض افراد کو پتہ بھی نہیں ہے مسلمان کا مطلب کیا ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو آج کل کے دور میں فتنہ پرستی تو بڑھ رہی ہے، وہ بٹھنے دیجیے، کیوں؟ اب اس پر بات نہیں کرنی ہے ہمیں، اس پر بات ایک دن آئے گا تب کریں گے، کیونکہ آج کے دور میں ہمیں صرف اور صرف ہمارے قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو گستاخیاں کر رہے ہیں، ان حرام جادوں کو سبق سکھانا ہے۔ اور رہی بات فتنہ پرستی کی، جو کچھ بھی ہے، راستے ہمارے الگ ہیں لیکن منزل ایک ہیں۔ راستے ہمارے الگ ہیں، منزل ایک ہے۔ منزل کون سی ہے؟ خدا تک، قیامت، آخرت۔ اور راستے کون سے ہیں؟ سنی، بہروی، اہل حدیث، تبلیغی، وہابی، دیوبندی، یہ جتنے بھی فرقے ہیں، یہ راستے الگ ہیں ہمارے، لیکن منزل تو ایک ہی ہے۔ منزل بس ایک ہی ہے، ایک ہی منزل ہے، کیا؟ اللہ کے پاس پہنچنا۔ اور جو بھی شخص مسلمان ہو، اگر وہ آخرت کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان نہیں۔ اس کی لاکھ عبادتیں ہو، اس کی لاکھ کروڑوں اس کے عبادتیں ہوں، یا سالوں کی عبادتیں ہوں، چاہے وہ وقت کا ایک ولی کیوں نہ ہو، اگر آخرت کو نہیں مانا تو وہ مسلمان نہیں کہلاتا۔ مجھے تو زیادہ علم نہیں ہے، جتنا علم ہے اتنا بتا رہا ہوں۔ اور رہی بات ذلت اور عزت کی، تعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ عزت دینے والا بھی اللہ ہے، اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے۔ اور کام اللہ کے سوا، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ پھر بھی یہ جو ہو رہا ہے ہندوستان میں، جو تریپورہ میں 15 مسجدوں کو شہید کیا گیا، قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، قرآن پاکوں کو جلایا جا رہا ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، تو آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ بس ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک مرد مجاہد جو اسدالدین، بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب جو ہیں، اس مدعے پر بھی، جتنے پہلے 3 طلاق کا ہو، یا بابری مسجد کا ہو، یا پھر موب لنچنگ ہو، یا چوری کیس میں جتنے بھی مسلمانوں کو پھنسایا گیا، ہر ایک مدعے پر وہ بات کرے۔ اب اسی مدعے پر بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا سو گیا ہے کہ دوسرا مسلمان نہیں ہے، ان کا حق نہیں بنتا ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی،
आप सब कह रहे हैं बीजेपी को बढ़ावा मिल जाएगा, वोट कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, वो कट जाएंगे। बीजेपी क्या कर रही है देख रहे हैं? अरे ये जो जड़ है ना, जड़ जो दंगा फैलान जो आरएसएस को पैदा किया वो कांग्रेस ही है। इसका प्रूफ भी मैं दूंगा आपको, इसका सबूत दूंगा, दलील दूंगा इसकी। जब बीजेपी का नाम और निशान नहीं था, जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद के बाद उससे तकरीबन 6 महीने या साल पहले आरएसएस को बढ़ावा दिया गया। जब आरएसएस को बढ़ावा दिया गया तो सोचा अलग था, हो गया अलग। लेकिन जब आरएसएस अपने हद से ज़्यादा गुज़र गया तो अपने माँ को ही भूल गया, यानी कांग्रेस को। तो वो अपने अलग 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 तरीके से बेटियाँ बच्चों को पाले, जैसे कि बीजेपी, बजरंग दल, शिवसेना, जितने भी हैं मुसलमान के ख़िलाफ़, क्रिश्चियन के ख़िलाफ़। अब हाल ही में देखे ना, मंगलौर में बोल रही है कुंदापुरी, हर लड़कियों को बुरखे से निकाल कर टीका लगाकर उनके घर को, उनके घरों की दुल्हनें बनाना चाहती है। वो भूल गई है कैसे कैसे चले गए, कैसे कैसे चले गए। इसका तो नाम पता भी नहीं रहेगा चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला। ये जो कह रही है, ये ख़ुद मुझे अल्लाह इसे हिदायत दे, ये ख़ुद दीन की तबलीग करे। ये दीन, ये कलमा पढ़कर अल्लाह ताला यही दीन की तबलीग करे। मैं ये चाहता हूँ इसे हिदायत दे, अल्लाह दुआ कीजिए। अगर इसके मुक़द्दर में हिदायत ही नहीं तो अल्लाह इसे तबाह बर्बाद कर दे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और जब बाज़ अफराद हैं फितना परस्ती मत बांटो, ये मत बांटो, वो मत बांटो, पहले ये देख लीजिए कि फितना परस्ती ज़्यादा है, मायने रखती, या अपना कुरान पाक रखता है या अपना मज़हब रखता है। जब मस्जिदें नहीं रहेंगे, जब कुरान पाक के ही नहीं रहेंगे, जब अजान लाउड स्पीकर में जो अजानें नहीं दी जाएंगी, तब क्या करेंगे आप? तब फितनों को लेकर के आचार डालेंगे। वो रैलियाँ निकाल रहे हैं, ये रैलियाँ निकालनी है, छोड़ डालिए। आपकी नौजवान पीढ़ी है, 21वीं सदी है, कोई भी कुछ उनके भी दिल में उमंग रहते, उनके भी दिल में कुछ ख्वाहिशात रहते। ये करना ना करना, ये हराम, ये हलाल, इसका हिसाब और किताब लेने वाला हम और आप नहीं है, मैं और तू नहीं है। क्योंकि इसका हिसाब लेने वाला जो दो जहाँ का मालिक है, मालिक मुल्कुस कुदरतुल हक़, मेरा अल्लाह, मेरा रब्बुल आलमीन, मेरा परवरदिगार है, जो दो जहाँ का मालिक है। वो हिसाब किताब लेगा। हम और आप कौन होते हैं हिसाब किताब लेने वाले? चलो तुम 10 लाख 20 लाख कमा लिए, हिसाब किताब तुम रख लिए, तो मत समझो कि वो पैसा तुम्हारा है। तुम्हारी चीज़ खुद तुम्हारी नहीं है। भाइयों, आज भी संभलिए, वक्त बहुत कम है, वक्त बीता जा रहा है। हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तान के संविधान के ख़िलाफ़ साजिशें रची जा रही हैं। मुसलमानों पर और दलितों पर बहुत नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। अब देखिए, बैरिस्टर साहब जो यूपी में, यूपी के दौरे में जो हैं, लगभग लगभग 60 से 62 या 60 से 62% तक लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई, अब देखने आने वाले दिनों में जो है आपको पता चल जाएगा कि बी टीम कौन सी है, ए टीम कौन सी है, सी टीम कौन सी है, डी टीम कौन सी है। ठीक है? तो बाद अफराद कहते हैं कि वो आ गए तो ऐसा होगा, वो आ गए तो वोट फूट जाएंगे। तो क्या क्या, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वोट फूट जाएंगे। जहाँ नहीं रुकी थी, जहाँ कांग्रेस आई थी, जहाँ बीजेपी के खिलाफ़ और कांग्रेस जेडीएस जितने भी हैं, जहाँ एमआईएम की पार्टी नहीं रुकी थी, वहाँ कांग्रेस आई। आने के बावजूद फिर बीजेपी में चले गए पैसे लेकर। समझ रहे ना मेरी बात? पैसे लेकर चले गए। आप किसके भरोसे पर बैठने वाले? आप कांग्रेस आ रहा है क्या सामने? कोई त्रिपुरा में आया सामने कोई भी कांग्रेस वाला आया? कोई आया? कोई दूसरा और कोई जो भी मुसलमान का जो अपने आप को मर्द मुजाहिद मानता हो,
कोई आया क्या? नहीं। क्यों? ये सिर्फ अपने बैरिस्टर के साहब का ही है ना, क्योंकि वो बी पार्टी हैं। बी पार्टी हैं, वो अकेले ही मुसलमान हैं, दूसरे मुसलमान ही नहीं है ना। इसीलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, संभलिए। ये फितना फरस्ती छोड़ दीजिए, ये अल्लाह के हाथ की बात है। ये तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चलता आ रहा है। फितना फरस्ती, शिया सुन्नी तबलीग अहले हदीस बहरविल जो भी है। अब हमें सिर्फ एक होना है कि क्योंकि क्यों किस लिए एक होना है? हमारे हक के लिए, और हमारे मस्जिदों को जो शहीद किया जा रहा है, जो हमें नीचे दिखाया जा रहा है, हमारी कौम को दबाया जा रहा है, इसके लिए एक होना है। उसके बाद में जो आप बहस करना है, आमने सामने जो आप खूना खूनी खेल दीजिए कि मैं बहरवेली हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, मैं तबलीगी हूँ, मैं सुन्नी हूँ। पहले हमारा जो आइन, हिंदुस्तान का जो आइन है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ख्याल रखते हुए हमारा हक हमें लेना चाहिए। और दूसरी बात भाइयों, मैं सच कह रहा हूँ कसम खुदा की, आने वाले दिनों में अगर हम नहीं संभल पाए तो बहुत बहुत बड़ी मुसीबतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तब अगर इस जहाँ में अल्लाह ताला, हर दौर में आजमाइशें आती रहीं, नबियों को आती रहीं, ताबाई को आती, तबे ताबाई को, सहाबियों को, हर एक नेक बंदे को भी आती रहीं, लेकिन वो सब्र नहीं आ रहे। इसलिए मैं कहता हूँ सब्र से काम लीजिए, अक्ल से काम लीजिए। ये जो पैसा है, कागज़ के नोट चंद दिनों के लिए है, वो पैसों से सिर्फ आप अपना खुद का कफन नहीं खरीद सकते, तो पैसा क्या है? सोचिए, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में क्यों भेजा है, और अल्लाह के लिए हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कितना वक्त लगा रहे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को किस तरह से हम निभा रहे हैं, उनकी सुन्नतों को अपना रहे हैं, उनके तौर तरतीबों को, उनके नक्श कदम पर चल रहे हैं। ये कुछ भी नहीं हो रहा, बस फितना फरस्ती, ये वो इसमें ही उलझते रहेंगे। तो सामने वाला आएगा, एक दिन धड़ाल मार डालेगा, तो ख़त्म, हिंदुस्तान में नामो निशान मिट जाएगा। और ये बात हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाने की, आने वाले 20 या 25 सालों में इंशाअल्लाह 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 यकीन है, प्रधानमंत्री मेरे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी होंगे इंशाअल्लाह। अगर वो होंगे तो इंडिया का नक्शा कदम पूरा चेंज हो जाएगा। दुआ कीजिए, वो सही हैं, गलत नहीं है। अगर वो गलत होते तो रो रो के दुआ नहीं करते, एक नफिल भी कदा नहीं करते, दिखावे के लिए नमाजें नहीं पढ़ते। समझ रहे हैं ना बात? भाइयों, मैं आपसे सबसे हाथ जोड़कर आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ। देखिए, आने वाले दिनों में बहुत दंगा फसादात होने वाले हैं, बचकर रहिए, संभलिए, और अपने हक को जो है पाकर रहेंगे, या यूं ही अपने बच्चों को पान दुकानों में या गैरेजों में या फिर कारखानों में या पान दुकानों में या सब्जी मंडियों में यहीं भेजना है। पढ़ाना नहीं है, लिखाना नहीं है, आगे बढ़ाना नहीं है। ज़रा सोचिए, हम तो गए, हम तो कुछ नहीं रहा, हम सीख कर भी ना सीख पाए, और हम अनपढ़ भी हैं, तो हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियों का तो सोचिए। क्या कोई कांग्रेस के 65-70 साल में, 60-65 साल में, क्या मुसलमानों के लिए एक अलग से कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई, एक कॉलेज, फ्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनाई कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान डेवलपमेंट हो जाए? कोई भी नहीं कर पाया भाई मेरे, कोई नहीं कर पाया। ये बस सियासती दौर पर अपना इस्तेमाल करते जा रहे हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अल्लाह जाने क्या होगा। बस दुआएं करते रहिए। मैं तो बोलता हूँ, जाता हूँ। और कल ये वीडियो के बाद कल कौन सी धमकी आती है या शाबाशी आती है पता नहीं। और इस बार
जुलूस रहमतुल्लाह अलैह टीपू सुल्तान हज़रत इब्ने हैदर अली और उनका जुलूस मनाया जाएगा। जो भी हो उनका जुलूस मना कर रहेंगे। और दूसरी बात, जो फिरका परस्ती की बात करेगा पहले अपनी गिरेबान में झांक ले, पहले क्या थे और अब क्या हो। पहले मामूली से मामूली 1000, 2000, 3000 के ड्राइवर थे, आज करोड़ों अब्जोपति हो गए। ये आपकी मर्ज़ी है। आज के दौर में राब कर घर चलाना मुश्किल है, तो दिन ब दिन करोड़ोपति, अब्जोपति, लाखोंपति होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा अहमियत समझें। जब तक दुनिया में हैं पैसा ही करेंगे। अगर आखिरत का कोई सोचता है तो वो लात मारता है, पैसों का लात। पैसों को अपना क्या है ना, धूल मानता है। समझ लीजिए यूँ कि पैसों की उसके नज़र में अहमियत ही नहीं है। तो बहरहाल देखिए, अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो, बड़ों को अगर दिल को चोट पहुंचाओ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं तो गलत बात नहीं कर रहा। और मेरे जो साथ देने वाले साथियों हैं, आप सबका शुक्र अदा गुज़ार हूँ, मैं सबका शुक्रिया करता हूँ। तहे दिल से मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ मुकम्मल तौर पर खड़े हुए हैं। उनको सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है देख लेना कि एक नौजवानों की जो पीढ़ी बन जाएगी, देखने के लायक होगी। और जो भी इसके बीच आएगा अल्लाह उसका हिसाब लेगा। हमें तो बस सब्र करना है और कानून के दायरे में रहते हुए काम करना है। गैर कानूनी तौर पर कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उनके खिलाफ़ कुछ भी अनाप शनाप बोलना, उनके खिलाफ़, उनके संविधान के खिलाफ़ कोई भी काम करना, गैर कानूनी काम करना, ये मुनासिब नहीं है, ये ठीक नहीं है। मैं आपसे आखिरी बात कहकर अपनी ख़त्म करना चाहता हूँ। देखो भाइयों, अगर दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है तो भूखा तो नहीं रखता। तो वो एक कीड़े को पत्थर में से भी रिज़्क देता है। तो हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें क्यों नहीं देगा? सोचिए। और जो फितना परस्ती की बात है, वो छोड़ डालिए चंद दिनों के लिए, फिर बाद में उसका हिसाब किताब होगा। आप कुछ भी करिए, वो आलिम हो, मुफ्ती हो, कारी हो, काजी हो, उनके बहस में वो लग जाएंगे। हाँ, मगर जो अल्लाह की राह में निकलने के लिए, नमाज़ों के लिए बताता है, नमाज़ों की तरतीबें पढ़ने के लिए बताता है, तो उसका साथ दीजिए। क्योंकि अल्लाह यही लोगों पर रज़ा है, यही लोगों पर खुश होता है जो सिरात मुस्तकीम कहते हैं। अल्लाह उन्हीं पर खुश है जो सच्चाई की राह पर और अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान करें। इसी के साथ साथ अपने दिलों में भी झांक ले, ज़र्रे ज़र्रे में खुदा है, ज़र्रे ज़र्रे में खुदा है। हम सब आप कहते हैं कि मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ें, जमातों के साथ नमाज़ें पढ़ें, ठीक है। अगर हमें वक्त नहीं मिला तो हम कहीं बाहर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो बात मैं आलिम या हाफिज़ मुफ्ती कारी नहीं हूँ, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन नमाज़ों की पाबंदी तो ज़रूरी है, नमाज़ें फ़र्ज़ हैं भाइयों, नमाज़ों से गाफिल मत होना। और रही बात फितना परस्ती बांटने वालों की, वो अल्लाह ताला हिसाब लेगा भाइयों। और मेरे बुज़ुर्गों, मेरे सीनियरों, बड़ों, ज़रा आप भी सोचिए कि आज तक मुसलमानों के लिए कोई कुछ भी नहीं किया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ना, इस वजह से है। सिर्फ़ और सिर्फ यही नहीं, आजकल की नौजवान पीढ़ी आगे बढ़ना चाहती है, लिखना पढ़ना चाहती है, सिखाइए उन्हें। आज देखिए हैदराबाद में
पूरे तेलंगाना में 30,000 बच्चों को फ्री एडमिशन दिया गया पिछले हफ्ते में। 30,000, लेकिन 3,000 बोल रहे हैं, लेकिन 30,000 हैं। लेकिन दिखाना भी पड़ता क्यों है? क्योंकि वो काम कर रहे हैं। अगर तुम 4 आने का काम करे तो 12 आने छुपाए रखे रहते हैं वो। मैं देख चुका हूँ, मैं सुन चुका हूँ, मैं उनसे रूबरू हो चुका हूँ, इसीलिए सब कह रहा हूँ और गुजारिश पर गुजारिशें कर रहा हूँ। भाइयों, देखिए, संभलिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, ईमान पक्का रखिए, अल्लाह के ऊपर यकीन रखिए, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखिए। और नमाज़ें पढ़े हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करने वाला। ये बात अपने दिलों से निकाल दीजिए। और एक बात, जो भी इस दुनिया में आया है, ना कुछ लेके आया था, ना कुछ लेके जाएगा। सब बोलते हैं कितनी बार बोल रहा, कितनी बार बोल रहा, बोलते रहेंगे, लेकिन बार बार मैं बोलता रहूँगा, क्योंकि जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, अल्लाह ताला कहर बरसाना शुरू कर देता है। कुछ न कुछ हमारे भी अमाल हैं ये, जो हमें आज रुसवा कर रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ भाइयों, आप सबसे ईमान पक्का रखिए और मज़बूती से ईमान की रस्सी को थाम के रखिए। अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह कभी अपने बंदों को नर्वस नहीं करता, बस इम्तिहान लेते रहता है। और वो भी कैसे? 2 चीज़ें, एक अल्लाह के नज़दीक जो रहता है सबसे ज़्यादा उसे इम्तिहान होती है, और जिस पर अल्लाह नाराज़ रहता है उसे खुशी देकर गम में डाल देता है। वो समझता है कि मैं, अल्लाह मुझे आज़मा रहा है, अल्लाह मुझे आज़मा रहा है। ऐसा भी नहीं है। अपने दिलों को अपने साफ़ कर दीजिए, अपने नफ्सों को मार दीजिए, अपने ख्वाहिशातों को मारिए। आगे चलकर जो भी होगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी। देख रहे हैं आप भी दूसरे देशों में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम चैन अमन से हैं हमारे देश में। लेकिन ऐसे मुस्तक़बिल आ रहे हैं, ऐसे ऐसे परेशानियाँ, ऐसे ऐसे मुसीबतें आ रही हैं, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, अजानों को लाउडस्पीकर में पाबंदी लगाई जा रही है, हिंदू राष्ट्र करने पर लगे हुए हैं। वो नहीं जानते, मिट गई हस्तियाँ मिटाने वाले, मिट गई हस्तियाँ मुसलमान को मिटाने वाले। अरे तू तो क्या फ़िरौन, क्या कारून, क्या नमरूद, क्या आने वाली नस्लें जानती हैं कौन किसे मिटाएगा। मेरी बात समझिए और गौर कीजिए, और कुछ गलत सलत बोला हूँ तो माफ़ी का भी तलबगार हूँ। दुआओं में याद रखिए, हमेशा अपने ज़ुबानों पर अल्लाह का ज़िक्र का स्वाद रखिए, और माँ बाप से प्यार मोहब्बत से पेश आइए। कौन सा पीर, फ़कीर, तावीज़, मौलवी, मुफ्ती, कारी की दुआ मत लीजिए, बस माँ बाप की दुआ लीजिए। बस माँ बाप की दुआ लीजिए। अगर माँ बाप की दुआ है तो कोई पीर, फ़कीर, पैगंबर कुछ भी नहीं, सिर्फ माँ बाप की दुआ लीजिए और माँ बाप की खिदमत करते रहिए, और साथ ही साथ अपने मज़हब को, अपने मुल्क को नाइंसाफ़ी से बचाइए। और आने वाले दिनों में जो है, हमें जो भी तैयारियां करनी है, कर चुके हैं, इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह की राह में शहीद हो गए तो बहुत ही खुश नसीब माना जाऊंगा मैं तो, अल्लाह की राह में शहीद हो गया तो। और दुआ में याद रखिए, अभी मुझे कुछ फ़ोन आ रहे हैं जो बात करनी है मुझे, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ भैया, जो गलती हो गई तो माफ़ करिए। और आने वाली 30 या 31 तारीख को मैं आप सबको मेरे ग्रुप में बता दूंगा कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, जो नहीं, जिसे कुछ भी आता उसे समझाइए, जाइए। और जो भी मुझे गलत नज़र से देख रहे हैं, जो मुझे गलत समझ रहे हैं, समझ लीजिए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह की नज़र में मैं गिरा हूँ तो अल्लाह मुझे गिराएगा। अगर अल्लाह की नज़र में मैं अच्छा हूँ तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। करने वाली ज़ात अल्लाह की है, मैं लोगों से क्यों डरूँ? मालिक मेरा वो है, मैं तो लोगों से क्यों डरूँ? ठीक है, हमेशा हमेशा मोहब्बत से पेश आइए, हर लोगों से
नबी की सुन्नतों को अदा कीजिए, दुआएं कीजिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद और सलाम पढ़ते रहिए। और इसी के साथ साथ अपनी माँ बहनों को घर में नमाज़ों की पाबंदी की तरतीबें बताइए। अगर एक वक्त की भी औरत नमाज नहीं पढ़ती घर में तो बेबरकत अल्लाह की लानत आती है। मुझसे तो बेहतर आप जानते हैं। ठीक है, जो खैर जो भी है, मैं जिस काम में आया हूँ उस काम में मैं या तो शहीद होऊंगा या तो कामयाब होऊंगा, ये तो तय है। और दुआ में याद रखिए, सब खुश सब खुश खुश रहिए। अल्लाह से दुआ कीजिए मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए। दुआओं की दरख्वास्त बड़े बुज़ुर्गों से भी कहिए और अपना ईमान मजबूत बनाइए। जय भीम, जय मीम, अल्लाह हाफिज़।